A very good evening to all. I, Dr. Vinita Thuli, welcome you all to the valedictory session of the 2-week online bilingual refresher course on cinema, society, and education. Cinema, Samaj, or Shiksha, organized under the aegis of the Internal Quality Assurance Cell of Atmaram Sanatan Dharm College, University of Delhi, in collaboration with the Teaching Learning Center, Ramanujan College, University of Delhi. This first 2-week refresher course organized by the IQAC of ARSD College marks an important milestone achieved by us and our college. I am honored to welcome our esteemed guests on the occasion, Professor Pradeep Burma, Chairman, College Governing Body, and Professor in the Department of Genetics, University of Delhi, and Chief Guest of the valedictory session. Professor Girishwar Mishra, former Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Hindi International University, Wadhwa, as the speaker of the valedictory session. And our respected principal, Sir, Professor Gyantosh Kumar Jha, to the valedictory session of the 2-week online refresher course. May I now invite the principal of our college, Professor Gyantosh Kumar Jha, an inspiration for us in all our endeavors, to welcome our guests and share his observations with us. Over to you, sir. Thank you, Vinita. Honorable Professor Girishwar Mishra ji, speaker for this valedictory session, and former chairman, our college governing body, former vice chancellor, Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha, Honorable Professor Pradeep Verma ji, chairman, college governing body, Dr. Vinita Thuli, convener of this organizing committee for this program, other colleagues and organizing committee members, and all the participants. On behalf of our college, IQAC, and the organizing committee, it's a great pleasure and honor for me to welcome Professor Mishra and Professor Burma in this valedictory session of this 2 weeks bilingual online refresher course on cinema, society, and education. Sir, I'm honored that both of you have spared and given your valuable time for this valedictory session, in which we are going to conclude this refresher course, this program. In fact, today we were taking feedback from our participants in a short span of time, and I observed that they have received many valuable lectures on cinema, society, and education. They have learned a lot, and they have provided some good suggestions for us also to improve in our future programs. I am grateful to our chairman, sir, Professor Verma, for his constant support, guidance, and mentoring. I am thankful to you, sir. I am grateful and honored to have Professor Girishwar Mishra ji, who has been always a source of inspiration for me and for my colleagues also. In these 15 days, in this refresher course, we tried to equip all the participants, all the teachers, with variant understanding of Indian cinema as a tool of teaching, and above all, understanding the educational and pedagogical perspective via cinema
and its agencies. We tried to understand that how cinema depicts our society and how cinema can be used as a tool of education. We tried to understand that how cinema is using us also as a tool in making cinema and in making market for earning money also. We tried to understand every aspect and every topic of this pertinent subject. मैं ऐसा मानता हूं कि सिनेमा और समाज एक दूसरे को बनाते हैं और शिक्षा और शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम केवल ज्ञान का अर्जन नहीं करते बल्कि हम समाज का और राष्ट्र का निर्माण करते हैं और शिक्षक की बड़ी महती भूमिका है। इसलिए सिनेमा एक मनोरंजन का साधन नहीं, सिनेमा एक बाजार नहीं, सिनेमा केवल एक उद्योग और व्यवसाय नहीं, बल्कि हमारे अध्ययन का एक बहुत मार्मिक और गंभीर विषय है जिसके माध्यम से हम समाज को, जीवन को, मनुष्य को और अपने आसपास को समझ सकते हैं, उसके मनोविज्ञान को, हमारी अपनी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारे धर्म को, हमारे जीवन को और बहुत सारी चीज़ों को। और इसीलिए हमने सिनेमा के विविध पहलुओं, सिनेमा के निर्माण, सिनेमा के निर्देशन, सिनेमा में अभिनय, सिनेमा में गीत लेखन, सिनेमा में संगीत, सिनेमा का दर्शन, सिनेमा का मनोविज्ञान, शायद अपनी ओर से कोशिश की कि हर विषय को, हर पहलू को छुआ जा सके। मित्रों, हर चीज़ की शुरुआत होती है और उसका एक अंत होता है। इस रिफ्रेशर प्रोग्राम में मैंने आरंभ में जब इसका इनॉग्रल सेशन था तब एक बात कही थी कि हम एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं और इस रिफ्रेशर कोर्स में शायद पहली बार आप जितने प्रतिभागी हैं आपने देखा होगा कि एक ऐसा भी क्षण आया जब हमारे बीच वक्ता भावुक भी हुए, उन्होंने आंसू भी बहाए और हम सब उससे अभिभूत हुए। यानी इस रिफ्रेशर कोर्स के दरमियान एक इस तरह की गहरी संवेदनात्मक संबंध हमारे आपस में एक दूसरे से जुड़ गए और हमने दिलों से बांध लिया एक दूसरे की को। इसलिए शायद बातें केवल संप्रेषित नहीं हुई, दिलों तक प्रवाहित हुई और उसकी धारा में, उसके संवेग में हम बहते नजर आए। संवेदनाओं ने केवल हमको उत्तेजित नहीं किया बल्कि संवेदनाओं ने हमको जागृत किया, चिंतनशील किया, विवश किया, कई बार आंसुओं को भी बहाने को। तो मैं समझता हूं कि यही शायद हमारी उपलब्धि है और मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा। कुछ एक जो कमेंट्स आए हैं उन सुझावों को मैं बहुत गहराई से और गंभीरता से लूँगा। मैं इसलिए जो भी प्रतिभागी इसमें शामिल रहे, जो वक्ता के रूप में आए, मैं उन सब का अपने कॉलेज की ओर से, हम सब की ओर से मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय दिया और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। इसके लिए उनका साधुवाद। मैं पुनः अपने दोनों अतिथियों का जो हमारे अभिभावक तुल्य हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। ओवर टू विनीता। Thank you, sir, for your words. Now I seek this opportunity to welcome the chief guest for the day, Professor Pradeep Kumar Burma. Professor Burma is the chairman of our college governing body and professor in the Department of Genetics, University of Delhi. Sir's research and teaching interests include genetics and plant biology. Sir has supervised several awarded and in-progress doctoral theses and MPhil dissertations. He has, to his credit, quite an impressive and extensive list of research papers, review articles, patents, research projects, and academic project awards.
We are really honored by your presence, sir. Now, I would like to invite the chief guest, Professor Pradeep Kumar Burma, to share his thoughts and experience with us. Sir. I think I have to unmute myself. Thank you for inviting me to chair this session. But listening to the discussion of Malanirav ji and also to what Gantosh ji was just now talking about, I wish he had invited me to be a participant in this refresher course. Of course, being chairperson, I am asked to come in at one point or the other, but I think I missed out a lot. Maybe I should have joined in between and listened to it because it's a very interesting topic. I am a geneticist, but this whole concept of cinema, society, and education is very interesting. And I really, from my heart, wish that I was a participant and listened to some of these, been part of those interactions, rather coming at the fag end of this whole. I'm sure a wonderful to all the participants being this whole online, can't see any of the participants around, but I'm sure they would have all enjoyed it. And I'm seeing some of the comments which have come in for the last talk, last session. I'm sure everybody had enjoyed this. So I think on behalf, the college has been doing wonders in organizing such refresher course of, in the leadership of Gantosh ji and all his able support from all the faculty members. I think on behalf of the college, I would please convey my appreciation and thanks to all the speakers who came on different occasions and shared their views. And I also thank all the participants, and I'm sure you would have all enjoyed the lectures that has happened over the last 10-15 days. And I'm sure the college will be organizing many more such refresher courses, which are out of the box and not the routine refresher courses that happen. Routine refresher courses happen everywhere. I'm sure these kind of refresher courses would be very, very useful. And maybe in future, once you have such a course, you should also share this with us, and we will, many of us would like to come and join in as participants rather than chairing a session or something like that. Anyway, thank you again. And I also thank Ganeshwar Mishra ji for coming for giving this talk in the valedictory session. And I think I'll keep it brief, and I'll request Vinita ji to take this session forward. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your words of encouragement, and they mean a lot to us. I extend a very warm welcome to Professor Girishwar Mishra, speaker of this valedictory session. आज के इस अंतिम और वैलेडिक्टरी सत्र में आप सबका स्वागत है। इस सत्र में हमारे बीच लेखक, चिंतक, मनोविद एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र हैं, जिनका समापन वक्तव्य हम सब सुनने जा रहे हैं। मैं सर की अनुमति से उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूं। एक मनोविद, विचारक एवं संस्कृति के अध्येता लेखक गिरीश्वर मिश्र हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। लेखन के अलावा अनुवाद और संपादन कर्म से भी जुड़े रहे हैं। आपकी लिखित एवं संपादित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। 5 दशकों के शैक्षिक एवं अकादमिक जीवन में गोरखपुर, इलाहाबाद, भोपाल तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापन के बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। समाज, शिक्षा, संस्कृति, भाषा और साहित्य से जुड़े प्रश्नों पर पत्र पत्रिकाओं में आप नियमित लेखन करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अपने शैक्षिक, अकादमिक, सांस्कृतिक यात्रा क्रम में आपने अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड समेत अन्य देशों की यात्राएं की तथा अनेक विदेशी विश्वविद्यालय संस्थानों में फेलो रहे हैं। अनेक संस्था, सम्मेलन आदि के सम्मानित सदस्य भी आप रहे हैं। आपकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं होने और न होने का सच, हिंदी भाषा और समाज,
हिरना समझी बुझी बन चढ़ना, भारत में शिक्षा चुनौतियां और अपेक्षाएं आदि। आपको अनेक सम्मान एवं पुरस्कार भी मिले हैं। सेवानिवृत्ति पश्चात संप्रति स्वतंत्र रूप से लेखन तथा शोध कार्य कर रहे हैं। Now I invite Professor Girishwar Mishra for his talk on this valedictory session. Sir. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर वर्मा, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर झा, डॉक्टर तुली और इस 2 सप्ताह के रिफ्रेशर कोर्स में शामिल हुए सभी प्रतिभागीगण, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्ञानतोष जी ने एक पहल की और एक ऐसे विषय को लेकर हम सबको विचार करने के लिए प्रेरित किया जो हमारे व्यवहार, हमारी कल्पना, हमारे आदर्श, इन तीनों से जुड़ा हुआ है। मैं इस पहल के लिए डॉक्टर झा और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह का नवाचार वे आगे भी करते रहेंगे। जब मुझे इस रिफ्रेशर कोर्स के पाठ्यक्रम में शामिल विषयों को प्रस्तुत किया गया, बताया गया, तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई कि सिनेमा की बारीकियों और सिनेमा और समाज के अंतर संबंध के साथ ही साथ शिक्षा में सिनेमा को कैसे शामिल किया जाए, यह प्रश्न भी विचार में रखा गया है। मैं समझता हूं कि इतनी सारी बातें की जा चुकी हैं और अभी आप लोगों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया और आपको नीरव जी जिस तरह से बता रहे थे, कुछ क्षण मुझे भी उनको सुनने का अवसर मिला कि किस तरह बड़े महत्वपूर्ण ढंग से शिक्षा के परिसर में हम सिनेमा को ला सकते हैं या लाना चाहिए। मित्रों, भारत में रंग कर्म बड़ा पुराना है और हम लोग विदेश की बहुत सारी बातें करते हैं और अगर इसके उद्भव को लेकर के आप देखें तो आपको कहीं भरत मुनि को याद करना पड़ेगा। लगभग 2000 साल पहले से रंग कर्म की बड़ी जबरदस्त परंपरा यहाँ पर थी और धीरे धीरे बहुत सारे उसमें परिवर्तन हुए। नाटक खेले जाते रहे। नाटक का आस्वाद कैसे किया जाए, ये कि पूरा का पूरा आप भरत के नाट्य शास्त्र में पाते हैं। और जिस तरह से यह धारा धीरे धीरे बदलती रही, यह समय नहीं है कि उसके इतिहास पर हम जाएं, लेकिन जो ताजा इतिहास है वहां पर हमको पारसी थिएटर से एक नई धारा मिलती है और फिर धीरे धीरे एक तरफ राजा हरिश्चंद्र से हमारी शुरुआत होती है, सिनेमा भारत में पदार्पण करता है और इसके साथ ही साथ हम यह भी पाते हैं कि नाटक भी हो रहे थे, थिएटर का भी काम खूब चल रहा था, अभी भी चल रहा है। मैंने देखा कि उसके निदेशक महोदय भी आपकी जो वक्तागण थे उनकी सूची में वो उपस्थित थे। तो नाट्यकर्म
भरत मुनि तो ये कहते हैं कि कोई ऐसा ज्ञान, कोई विषय, कोई चीज नहीं है जहां पर नाट्य न हो। तो नाट्य जो है वह माध्यम भी है और विषय भी हो जाता है। और अंततः सिनेमा जो है वह नाटक है, वह एक प्रकार का नाटक है, और एक नए माध्यम में वह पिरो करके जब प्रस्तुत होता है तो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। उसकी अपनी आर्थिकी है जो कि हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों कितने उसमें लगते हैं तब सिनेमा तैयार होता है, वह एक पक्ष है उसका। लेकिन निरंतर उसमें कितने तरह के प्रयोग होते रहे हैं यह आपकी चर्चा में आया हुआ है। तारे ज़मीं की बात हुई, 3 इडियट की भी बात हुई ही होगी। एक पुरानी फिल्म मुझे याद आती है, 2 आंखें 12 हाथ। आप पूरी सूची आप देखिए, और शोले का जिक्र भी हो रहा था। कितने तरह के तमाम आंदोलन हुए हैं, और उनमें कहीं न कहीं एक तरह की दृढ़ता, एक तरह का विश्वास आपको दिखाई पड़ता है। आप श्याम बेनेगल की फिल्में लीजिए या सत्यजीत रे की फिल्में लीजिए, आप पाएंगे कि एक खास तरह की धारा जो आपको सोचने के लिए विवश करती है, आपके विचार में बदलाव ले आती है, आपको दिखाई पड़ती है। आप यह भी पाएंगे कि बहुत सारे जो हमारे समाज के संघर्ष हैं, तनाव हैं, उनको व्यक्त करने का एक खूबसूरत माध्यम, एक प्रभावशाली माध्यम बन करके हमारे सामने ये फिल्में आती हैं। चाहे आप गर्म हवा को देखिए, अनुभव को देखिए, कितनी कितनी फिल्मों का मैं नाम लूं, आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन हमारा कहने का अर्थ सिर्फ यही है, चाहे स्त्री के जीवन का प्रश्न हो या समाज में जिस तरह की विद्रूपता हो रही है, जो राजनीतिक समस्याएं हैं, या शिक्षा के, इंग्लिश मीडियम के ऊपर बड़ी सुंदर फिल्म आई थी कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन समस्याओं को कितने प्रभावशाली ढंग से हम कम्युनिकेट करते हैं, पहुंचाते हैं, ताकि लोग उसका अनुभव कर सकें। सिनेमा का माध्यम, उसकी जो तकनीकी जिस तरह से विकसित हुई है वह इतनी प्रभावशाली हो गई है कि हम रम जाते हैं उसको देख करके और उसका अनुभव करते हैं। और जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सिनेमा का प्रवेश नहीं है या उसकी अभिव्यक्ति उसमें नहीं है, चाहे वो धार्मिक पक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, कला का पक्ष हो, आप सब उसमें पाते हैं। एक और बात, मुझे लगता है कि सिनेमा अपने आप में एक इकाई के रूप में दिखता है, लेकिन उसमें अनेक कलाएं शामिल होती हैं। उसमें भाषा भी आपको मिलती है और उसके साथ ही साथ रंग का प्रबंधन भी आपको दिखाई पड़ता है, और आप यह भी देखते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, संवाद किया जाए, यह भी आपको दिखाई पड़ता है। तो नाना प्रकार की कलाओं का संयोजन होता है, अनेक तरह के इनपुट उसमें प्राप्त होते हैं, तब जाकर के एक अच्छी फिल्म खड़ी होती है, तब मुगले आजम बनती है, तब ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, और उनका असर कितना होता है यह सब हमको मालूम है। उसमें गाने कब हों, कैसे हों, किस तरह के हों, उसमें बोला कैसे, तो ये एक प्रकार का अपने आप में ऐसा आयोजन होता है जो अनेक प्रकार की कलाओं का सम्मिलन का केंद्र होता है। तो यह एक बहुत बड़ी दक्षता की, कारीगरी की, हुनर की अपेक्षा रखने वाली एक विधा है जो स्वयं में एक कला रूप के रूप में आज पूरे विश्व में स्वीकृत है और उसे मान्यता प्राप्त हुई है। आप यह भी पाएं कि समाज फिल्मों से जुड़ करके और अचेतन और चेतन दोनों रूप से
उसका फैशन, बोलचाल की भाषा, आदर्श और उसके साथ ही साथ जीवन की शैली, इन सारी बातों पर आप उसका प्रभाव पाते हैं। यदि आप विश्लेषण करें तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि इस तरह का जो सिनेमा का और समाज का जो रिश्ता है वह किस प्रकार का है। सिनेमा समाज की भाषा बन जाता है, समाज का दर्पण बन जाता है, और जो कुछ घटित हो रहा है उसको ऐसे रूप में हमारे सामने रखता है ताकि हम अपनी एक तरह की आइडेंटिफिकेशन या तादात्मीकरण करने लगते हैं। और सिनेमा कितना व्यापक हुआ है, और जो सोशल मीडिया के और जो गैजेट्स हैं उसके माध्यम से भी सूचना इतना सिनेमा के बारे में व्याप्त हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे भी फिल्म स्टार जो हैं उनके हाव भाव, शैली और उनका जीवन, इन सबको खूब बड़ी रुचि के साथ अब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। आप अखबारों में भी आप पाएंगे कि नित्य प्रति एक कॉलम जरूर उसमें बना रहता है, या एक पृष्ठ भी कभी कभी होता है, आधा पृष्ठ भी कभी कभी होता है, जो निरंतर आपको अपडेट करता रहता है ये कौन फिल्म बन रही है, कौन उसमें नया विषय आ रहा है, और जो हमारे कलाकार हैं उनकी आदतें क्या हैं, उनकी जीवन शैली क्या है। आप ये सारी बातें निरंतर, हम कहना यह चाहते हैं कि सिनेमा और सिनेमा के पूर्व और सिनेमा के बाद उससे जुड़ी हुई सारी घटनाओं से निरंतर मीडिया के विभिन्न माध्यम जो हैं आपको परिचय कराते रहते हैं। सिनेमा की केंद्रिकता, उसकी सेंट्रलिटी किस तरह बढ़ रही है कि लोग उससे अपडेट होते रहते हैं कि कौन कहाँ छुट्टी मना रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका फोटो शूट हो रहा है, ये सारी सूचनाएं बहुत सारी आती रहती हैं। और उसको लेकर के बहुत सारी सच्ची खबरें भी होती हैं, बहुत सारी गलत खबरें भी होती हैं, और एक प्रकार का आवरण भी उसमें रहता है, और दूसरा उस आवरण को खोद करके उसको भेद करके हम अधिक से अधिक उनके बारे में कैसे जानें, इसकी एक बड़ी जबरदस्त इच्छा बच्चों में, किशोरों में मैं देख रहा हूं कि पनप रही है। यह समाज के ऊपर उसका एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। मैं कहना नहीं चाहता, आप थोड़ा और विस्तार में अगर जाएंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे अपराध भी सिनेमा से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से अखबार में आते हैं, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जहां पर कहीं न कहीं चोरी की, डकैती की, हत्या की तमाम सारी दुर्घटनाएं जो हैं उसकी प्रेरणा सिनेमा से मिलती है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन करे, या तो मनोरंजन के रूप में आप कितना उसको ग्रहण करते हैं और उसके आगे कितना आप उसको जीवन में अपने उतारने लगते हैं, या तो आपका अपना प्रश्न हो जाता है, या आपका विवेक हो जाता है। तो सिनेमा का समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह कुछ अर्थों में कहीं न कहीं सामाजिक असंतोष, जो कलह है और जो मानसिक विद्वेष है, जो अपराध है, कहीं न कहीं उससे भी इसका जोड़ तोड़ दिखाई पड़ता है। प्रश्न यह है कि क्या इस तरह का जो साफ सुथरा सिनेमा हो, जो लोगों में आदर्श को ले आ सके, जो जीवन में लोगों को एक दृष्टि दे सके, न दिखाया जाए, यह प्रश्न तो बड़ा गंभीर है। हम सेंसर बोर्ड की बात करते हैं और उसके माध्यम से कोशिश करते हैं कि एक मर्यादा हो जिसका पालन किया जाए और जिसके अनुसार हम इसका उपयोग करें। अब प्रश्न यह उठता है कि इसमें संतुलन कैसे किया जाए, और यह एक बड़ा जटिल प्रश्न हमारे सामने है। और यह इसलिए और भी जटिल हो गया है कि मीडिया के इतने रूप आ गए हैं और वो सब कहीं न कहीं सिनेमा से जुड़ जाते हैं। तो यह एक बड़ा गंभीर पॉलिसी का प्रश्न है जिस पर जो समाज के हितैषी हैं, जो राजनेता हैं,
जो नीति निर्माता हैं, उन सबको विचार करना पड़ेगा कि सिनेमा जो परोस रहा है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्क्रीन टाइम कितना दिया जा रहा है। अब आज कोरोना के समय में सब लोग इतना अधिक स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, शायद विकल्प ही नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति में है। यह तो एक अस्वाभाविक असामान्य स्थिति है। लेकिन सामान्य स्थिति में सिनेमा का प्रभाव किस प्रकार का पड़ता है, यह विचारणीय प्रश्न है, नीतिगत प्रश्न है। और हमें ध्यान देना पड़ेगा कि समाज की रुचि को दिशा देने के लिए हम किस प्रकार के सिनेमा को बनाएं, किस पर बल दें, किन मूल्यों को हम वहां पर प्रस्तुत करें। क्योंकि जिस जीवंत रूप में सिनेमा में हम भिन्न भिन्न किरदारों को तमाम सारा जो कुछ करते हुए देखते हैं, उस क्षण में स्वयं को आप अपने को विस्थापित कर लेते हैं और उसके साथ आपका तादात्म्यकरण घटित होता है और यह एक बड़ी जटिल स्थिति हो जाती है। मित्रों, यह एक पक्ष है जिधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। रही बात कि सिनेमा का एक तकनीक के रूप में, अध्ययन सामग्री के रूप में भी हमारे शोध कार्य में, हमारे अध्यापन कार्य में उपयोग किया जा सकता है। बहुत सारे समाज विज्ञान के ऐसे विषय हैं जहां पर हम प्रयोगशाला जो जीवन की है उसको कक्षा में सिनेमा के माध्यम से उपस्थित कर सकते हैं और उन घटनाओं, उन चरित्रों, उन कथाओं का विश्लेषण कर सकते हैं और उनके आधार पर थॉट एक्सपेरिमेंट्स हम निर्मित कर सकते हैं और हम तरह तरह के सिद्धांतों की परीक्षा भी सिनेमा के माध्यम से कर सकते हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से हम जो उसका प्रभाव पड़ता है वह तो है ही, लेकिन विषय की सामग्री के रूप में, चाहे वह साहित्य का विद्यार्थी हो, मनोविज्ञान का विद्यार्थी हो, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो, इतिहास का विद्यार्थी हो, सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री हमको सिनेमा से प्राप्त होती है। प्रायः इसका उपयोग हम कम करते हैं, लेकिन मैं अपने स्वयं के अध्यापन में इसका उपयोग करने का कई बार मैंने प्रयोग किया है और इसके साथ जो संलग्नता है और जिन प्रश्नों के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं उनके खोल करके उदाहरण के साथ और समझने के लिए जो अवसर सिनेमा से मिलता है वह शायद केवल सूखे सूखे कोई चीज आप सिद्धांत के रूप में बता दें तो शायद बात नहीं बनती है। तो यह आंख खोलने वाला होता है और सामान्य रूप से जीवन की समझदारी विकसित करने के लिए जो हमारी फिल्में हैं, जो उनमें नए तरह के परिवर्तन आए हैं, वो अपने आप में पूरे समाज का इतिहास उसमें प्रतिबिंबित होता है। इस दृष्टि से उनका उपयोग होना चाहिए। यह एक सशक्त माध्यम है जो जीवन को प्रभावित करता है और जीवन से प्रभावित होता है। आप इन भिन्न भिन्न अवधियों में जो फिल्में बनी हैं उनका ऐतिहासिक रूप से भी आप विश्लेषण करेंगे तो आप यह पाएंगे कि मनोरंजन के साथ ही साथ ज्ञानवर्धन भी इसका लक्ष्य रहा है, मूल्यों की स्थापना करना भी लक्ष्य रहा है और बहुत कुछ सिनेमा जो हम देखते हैं वह अचेतन रूप से हमको प्रभावित करता है और चाहे अनचाहे उनका प्रभाव हमारे जीवन शैली के ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर, महत्वाकांक्षाओं के ऊपर पड़ता है। बंबई में जाने कितने लोग फिल्म में काम करने के लिए तमाम देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। लोगों का सपना बन गया है। एक जमाने में इसका सपना बहुत था, अभी भी है कि युवा लोग अपनी जो तकदीर है उसको आजमाने बॉम्बे जाते थे कि वह फिल्म के भिन्न भिन्न पक्षों में कहीं न कहीं काम करेंगे। बहुत से सफल भी हुए, बहुत से उसमें
असफल रहे, और इस तरह से युवा पीढ़ी के सपनों का एक हिस्सा स्वयं फिल्मों में काम करना, उनसे जुड़ना बना रहा है। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण लगता है सर का कनेक्शन। हाँ, अरविंद फोन कर लो। हाँ जी सर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। क्षमा करेंगे, ये बीच में अवरोध उत्पन्न हो गया तकनीकी। मेरा वक्तव्य अब लगभग समाप्ति पर है। मैं निष्कर्ष के रूप में यही कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा में विशेष रूप से अध्यापन के लिए एक प्रकार की जो सांस्कृतिक सामाजिक संवेदना है, उसके विकास में हम फिल्मों का उपयोग जो समय समय पर अपने विषय को प्रस्तुत करने के लिए सहायक हो सकता है, जरूर करें। और इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि नीतिगत दृष्टि से सिनेमा पर चर्चा में हम सबको यह प्रयास करना होगा कि सार्थक सिनेमा किस प्रकार का हो सकता है, और सिर्फ मनोरंजन और मनोरंजन से आगे समाज को दिशा देने के लिए जो उसका उपयोग हो रहा है, उसमें हम किस तरह सहायक हो सकते हैं। जो रिफ्रेशर कोर्स आपका हुआ है, उसके अंतर्गत इन सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा जरूर हुई होगी। मैं आशा करता हूं कि आपकी एक सुचिंतित दृष्टि अब विकसित होगी और सिनेमा को एक ऐसे अस्त्र शस्त्र के रूप में, ऐसे माध्यम के रूप में आप उपयोग कर सकेंगे जो शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में और विद्यार्थियों की सामाजिक दृष्टि को समृद्ध करने में सहायक होगा। मैं इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं और एक बार पुनः प्रोफेसर झा, डॉक्टर तुली और आप सबको यह कहना चाहूंगा कि इस तरह के विषयों को, जो कि समाज और नीति और उसके साथ ही साथ जो हमारा मानसिक क्षितिज है, उसको प्रभावित करने वाले विषयों को लेकर आप आयोजन करते रहें। मैं इस अवसर पर आपको एक बार पुनः बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समापन सत्र के व्याख्यान के रूप में जो हमारा अब तक का रिफ्रेशर कोर्स रहा 7 अप्रैल से लेकर 19 तक, यानी आज तक, आपने एक अच्छा आलोक दिया उस पर। और सिनेमा पर बात करते हुए आपने बहुत सही बातें कही कि सिनेमा हमारे व्यवहार, हमारे आदर्श और हमारी कल्पनाओं तीनों से जुड़ा हुआ है। उसे सिर्फ किसी हकीकत या किसी आदर्श या किसी सिर्फ ख्याल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, बल्कि वह हम सब की जिंदगी के सभी पहलुओं से एक साथ जुड़ा हुआ है। आपका यह भी कहना ठीक था कि सिनेमा का मूल स्रोत रंग कर्म है। इस पर कई विद्वानों ने भी अपने वक्तव्य में पीछे बात रखी थी, और उन्होंने भारत के नाट्य शास्त्र से इसे जोड़कर देखा था और बताया था कि कैसे सिनेमा जिस पॉपुलर फॉर्म में हम सब के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, आरंभिक दौर में नाटक में उसके सारे मूल स्रोत, मूल बिंदु पाए जाते हैं। और आपने उस तरफ इशारा किया और बताया कि आज वह एक नए माध्यम का, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के नए रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इसलिए जब हम सिनेमा का अध्ययन करें, उसे देखने समझने की कोशिश करें, तो अपने रंग कर्म की जो भारतीय परंपरा है उसको भी जरूर ध्यान में रखें। और ये बात सही है कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण रंगकर्मी हैं, और वो आरंभिक दौर में कहीं ना कहीं सिनेमा की दुनिया से भी जुड़े रहे, और जितने भी सिनेमा के निर्देशक हैं, स्थापित निर्देशक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने जाते हैं, उनके ना सिनेमा निर्माण में
उनके निर्देशकीय क्षमता में, प्रतिभा में कहीं ना कहीं भारतीय नाट्य शास्त्र और भारतीय रंगकर्म की परंपरा की झलक दिखाई देती है। आपने ये भी कहा, और बहुत सही बात कही आपने, कि सिनेमा हमारे समाज के बहुत सारे उलझे हुए, छुपे हुए, दमित प्रश्नों को, अनसुलझे प्रश्नों को का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह सामाजिक प्रश्न हो, चाहे सांस्कृतिक प्रश्न हो, चाहे धार्मिक हो, शैक्षणिक प्रश्न हो। सिनेमा एक कला है, एक कला है, मतलब ऐसा दिखाई देता है कि सिनेमा अपने आप में एक सिंगुलर आर्ट है, लेकिन आपने सही संकेत किया कि वह दरअसल विभिन्न कलाओं का संगम है, और विभिन्न कलाओं को अपने भीतर समेट कर प्रतिनिधित्व करने की उसकी इसी क्षमता ने आज कलाओं का सिरमौर बना रखा है, और कहा जा सकता है कि सिनेमा हमारी सभी कलाओं का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है। ये बात भी सही कही आपने सर कि आज सिनेमा स्वयं एक भाषा बन गई है, जिसमें हम सब की सामूहिक संवेदना, हमारे सामूहिक विचार, हमारे सामूहिक भाव और अनुभव दर्ज होते हैं। इसलिए सिनेमा देखते हुए जो बेहतर सिनेमा होती है, जो सिनेमा हमें सीख दे जाती है, जो सिनेमा हमें अंदर तक हिलोर जाती है, उस सिनेमा में कहीं ना कहीं हमारे जीवन की स्मृतियाँ, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपनी कामनाएं, हमारे अपने विचार झलकते हुए दिखाई देते हैं। और इसका प्रमाण तब मिलता है जब हम लोग थिएटर में बैठे हुए फिल्में देख रहे हों और अचानक सामने चल रहे दृश्यों और डायलॉग्स के साथ हमारे भीतर हृदय में एक कंपन उठे और आंखों से कभी कभी कुछ दो बूंद आंसू झलक के गिर जाए, और कभी कभी सिनेमा के पात्रों के साथ साथ चलते हुए हम पात्रों के अलग अलग रूपों में अपने आप को बढ़ते हुए देख लें। इससे सिनेमा का गहरा असर हमें समझ में आता है। इन अर्थों में संक्षेप में, तकनीकी व्यवधान के बावजूद, इन अर्थों में संक्षेप में आपने सिनेमा के महत्व और आज उसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला। सर आपका फिर से बहुत बहुत आभार। अब आगे के लिए माइक अपने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार सर को सकता हूँ। सर, प्रिंसिपल सर। हाँ अरविंद, धन्यवाद। इससे पहले कि औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हो, विनीता हैं? हाँ जी सर। हाँ, विनीता करें। मैं कुछ बातें जो वैसे तो मैं बोल चुका हूँ सारी बात, लेकिन औपचारिक रूप से प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी का, प्रोफेसर प्रदीप वर्मा जी का, जो कि हमारे कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, और जिनके सहयोग, समर्थन और सानिध्य से ही इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। अभी गिरीश्वर सर ने अपनी बात करते हुए एक बात कही थी कि नवाचार ऐसे ही आगे चलते रहने चाहिए। तो मैं इसमें सर को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस नवाचार की प्रक्रिया की बीज आपने डाली थी और अंकुरित होकर के वो पौधा धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो नवाचार की यह प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगी। और कई प्रतिभागियों ने आज अपने फीडबैक देते हुए कहा कि वो इस विषय पर रिसर्च पेपर लिखेंगे या लेख लिखेंगे या बहुत क्रिएटिव काम करेंगे। तो ये और प्रेरित करता है मुझे कि हम लोग इस तरह के नवाचार करते रहें। और मैं आगे, अभी इस बार हमने बदलते सामाजिक मूल्यों के साथ बदलता सिनेमा और शिक्षा के साथ उसके संबंध पर बहुत सारी बातें की। मुझे लगता है कि अब बदलती शिक्षा और बदलती शिक्षा व्यवस्था और बदलती शिक्षा की तकनीक के साथ समाज कैसे बदल रहा है, इसको अब गहरे अर्थों में समझने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब जिसमें मल्टी डिसिप्लिन के लोग हों, सभी संकायों के अगर प्रतिभागी हों, तो वो मज़ेदार प्रोग्राम होता है। इसीलिए मैं एक तरफा या एक रस बात करने या प्रोग्राम करने में विश्वास और यकीन नहीं रखता, और जहाँ हर विचार और हर प्रवाह की जगह हो, गुंजाइश हो, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान ही एक जगह है जहाँ इस तरह के विमर्श हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, और हम इसमें ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और हमारे चेयरमैन सर अभी मौजूद हैं, और उनका जिस तरह से उनके विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उसको लेकर के भी हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, शोध के लिए भी, नवोन्मेष के लिए भी, नवाचार के लिए भी, और आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। और सर से निरंतर सहयोग की उम्मीद रहती है और आगे भी बनी रहेगी। तो पुनः मैं सर का, चेयरमैन सर का और गिरीश्वर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।
और प्रतिभागियों को यह कहना चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिए हैं और आपकी जो टिप्पणी है वो मेरे लिए, मेरी टीम के सदस्यों के लिए बहुत बहुमूल्य है, अमूल्य है। आपकी टिप्पणी और आपके सुझाव हमें उत्साह प्रदान करता है, हमें ऊर्जा दे रहा है और हम ऊर्ज्वसित हो रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। और वाकई ये 15 दिन कैसे बीता मुझे खुद समझ में नहीं आया और मैंने लगभग सारे व्याख्यान इसमें सुने। और थोड़ा अभी कॉलेज में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, शायद इसका फ़ायदा मैंने भी ले लिया, तो मैंने भी सुना और मुझे भी बहुत एक आनंद की अनुभूति हुई। और आपके जो सुझाव को मैं गौर करूँगा और आगे के कार्यक्रमों में उसको लागू करने की हम कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही इसी विश्वास के साथ, जो विश्वास आपने हमें इस बार जताया, आगे भी आप जताएंगे और हमसे जुड़े रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विनीता। थैंक यू सर। सिनेमा, समाज और शिक्षा को लेकर आयोजित इस रिफ्रेशर कोर्स में 7 अप्रैल से आज तक हम लोग निरंतर ज्ञान अर्जन और नवीकरण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के प्रसार के साथ ही अलग अलग रूपों में सिनेमा हम सबके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर के रूप में सिनेमा समाज के सभी वर्गों का एक साथ प्रभावित कर रहा है। हम सिनेमा विशेष के कंटेंट या फॉर्म से बेशक सहमत या असहमत हो सकते हैं, इसके बावजूद सिनेमा हमारी भाषा, हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, हमारा रवैया, हमारे मानवीय संबंधों, हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों को न सिर्फ कई रूपों में प्रभावित करता है, बल्कि नए सिरे से उसे डिजाइन भी कर रहा है। विशेषकर आज की युवा पीढ़ी, जिसे शिक्षित और दीक्षित करने का एक दायित्व हम सबके ऊपर है, वह सिनेमा के इस प्रभाव को सबसे ज्यादा ग्रहण कर रहा है। सच्चाई ये भी है कि आज का सिनेमा उद्योग इसी युवा वर्ग को टारगेट करता है। युवाओं के बीच सिनेमा की इस प्रभावपूर्ण उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने समाज और शिक्षा के संदर्भ में सिनेमा को जानने, समझने और विश्लेषण करने का प्रयास किया, जिसमें लगभग 50 विशेषज्ञ विद्वानों के साथ चर्चा हुई। हमने सिनेमा, समाज और शिक्षा को अनेक संदर्भों में देखा, समझा और जाना। आयोजन समिति यह उम्मीद करती है कि इस आयोजन से आप सब पार्टिसिपेंट्स लाभान्वित हुए होंगे। सिनेमा को देखने, समझने और उसे विश्लेषित करने का नजरिया और भी गहरा, व्यापक हुआ होगा। As the 2-week online refresher course approaches its end, I would like to express my immense gratitude to Professor Pradeep Kumar Burma for accepting our invitation as the chief guest of this valedictory session, and for his encouragement in all our academic endeavors and pursuits, and for his constant support, positive guidance. And I would also like to thank Professor Girishwar Mishra as the speaker of this valedictory session. And it's always a pleasure to hear you speak, sir. I would also like to thank the principal of our college for his continuous support in all our endeavors and academic endeavors and pursuits. And without his support, this refresher course would not have been possible, sir. Professor V.K. Arora, the IQAC coordinator of the college, for his positive support and guidance always. I would also like to thank my entire organizing team for their continuous, positive, relentless effort since the inception of this 2-week refresher course. And it would not have been possible without their support. Co-convener of this program, Dr. Anjali Gupta, Ms. Moitri Roy Chaudhary, Ms. Shibani Fukan, Dr. Syed Mubin Zehra, Dr. Vikas Kumar, Mr. Dipankar, Dr. Manisha, Dr. Priyanka Kulhari, Dr. Shubha Dwivedi, Dr. Anil Kalotra, Mr. Anil Kumar Rajak, Dr. Sridharam, and Dr. Arvind Mishra. I would like to specially thank and mention the names of our technical support team.
Dr. Amit Vishwakarma, Mr. Ravinder Pant, Dr. Abid Hussain, Ms. Anupriya Arora, Ms. Baljeet Kaur, for handling all these sessions flawlessly. On behalf of the IQAC of ARSD College and the organizing team, it is my pleasure to thank all the participants. And without your support, this program would not have been possible. I hope this rich program provided all of us with the opportunity to interact with the speakers, and your experience with this online refresher course was fruitful and it would be long lasting. Thank you, everyone.